امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کو دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں چند گھنٹے باقی رہ گئے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا بیان میں کہا کہ آج کی رات ایک پوری تہذیب ختم ہو سکتی ہے جو پھر کبھی واپس نہیں آئے گی۔ ٹرمپ نے کہا وہ ایسا نہیں چاہتے لیکن حالات اسی طرف جا رہے ہیں۔ گزشتہ 47 برس سے جاری بھتہ خوری، کرپشن اور خون ریزی کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ اگر مکمل اور فیصلہ کن رجیم چینج ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ زیادہ سمجھدار اور کم شدت پسند قیادت آتی ہے تو ممکن ہے کہ کوئی غیر معمولی اور مثبت تبدیلی سامنے آ جائے۔ یہ ایک انتہائی اہم لمحہ ہے، ہم آج رات دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ٹرمپ نے آخر میں ایران کے عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا، خدا ایران کے عظیم عوام کا محافظ ہو۔ ایران کی جانب سے سعودی عرب پر پھر حملے، 18 میزائل داغ دیے گئے۔ ایرانی فوج کا سعودی عرب کے صنعتی شہر جبیل میں پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر حملہ۔ امن کی کوششوں کے دوران سعودی عرب پر حملوں نے ثالثوں کی مشکلات بڑھا دیں۔ پاکستان کی سعودی عرب میں توانائی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملوں کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں توانائی کی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملوں پر گہری تشویش اور دو ٹوک مذمت کا اظہار کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان حملوں کو خطے کی امن و استحکام کے لیے خطرناک اور کشیدگی میں اضافہ سمجھتا ہے۔ پاکستان سعودی عرب کی سلامتی کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ سعودی معیشت کو نشانہ بنانا کسی صورت قابل قبول نہیں۔ ایسے حملوں سے کشیدگی بڑھے گی۔ کوشش ہے کہ خطے میں امن قائم ہو۔ ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں شدت۔ ایران کے جزیرہ خارق پر بمباری۔ عرب میڈیا کے مطابق جزیرہ خارق پر متعدد مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ تبریز زنجان ہائی وے پر پل کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے علاقے کاشان میں بھی ایک ریلوے پل بمباری کا نشانہ بنا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مشہد سے ٹرینوں کی آمد و رفت حکم ثانی معطل کر دی گئی۔ تہران اور اصفہان سمیت مختلف شہروں میں بمباری سے 50 افراد شہید ہو گئے۔ تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ کے قریب زوردار دھماکے، ایک عبادت گاہ بھی مکمل تباہ۔ کرج میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کے جواب میں ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ تحمل کا وقت ختم ہو چکا۔ ایرانی پڑوسی ممالک میں امریکہ اور شراکت داروں کے بنیادی ڈھانچوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی پاکستان کی امن کوششوں کی تصدیق۔ ایکس پوسٹ میں لکھا، خیر سگالی اور ثالثی کی کاوشیں فیصلہ کن موڑ پر ہیں۔ جنگ روکنے کے لیے پاکستان کی مثبت اور مؤثر کوششیں اہم اور حساس مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔ مزید پیش رفت کے لیے انتظار کریں۔ امریکی وفد نے 15 نکاتی امن منصوبہ دیا تھا۔ ایران سے افزودہ یورینیم کا حصول اور ایٹمی صلاحیت کی خواہش نہ رکھنے کی ضمانت طلب کی گئی۔ بدلے میں ایران پر معاشی پابندیوں کے خاتمے اور اثاثوں کی بحالی کی پیشکش کی گئی۔ ایران نے امریکی منصوبے کے جواب میں اپنی سفارشات تیار کیں۔ عارضی کے بجائے مستقل جنگ بندی، خطے کے دیگر مقامات پر بھی اسرائیلی حملے رکوانے کا مطالبہ، آبنائے ہرمز پر کسی کی اجارہ داری کو تسلیم نہ کرنے اور تعمیر نو کے اخراجات بھی مطالبات میں شامل۔ چین کی پاکستان کی جانب سے ثالثی کی کوششوں کی حمایت۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ ماؤننگ نے کہا کہ چین امن کے لیے پاکستان کی فعال کوششوں کو سراہتا ہے۔ فوری جنگ بندی اور مذاکرات کی بحالی عالمی برادری کی مشترکہ خواہش ہے۔ امید ہے کہ متعلقہ فریقین امن کے اس موقع کا فائدہ اٹھائیں گے، اختلافات کو بات چیت کے ذریعے کم کریں گے اور جلد از جلد جنگ کو ختم کیا جائے گا۔ چین اس عمل میں تعمیری کردار ادا کرنے کا خواہاں ہے۔ ادھر قطر کی جانب سے بھی پاکستان کی امن کوششوں کی حمایت کی گئی۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ حالات اس نہج پر آ گئے ہیں کہ کسی بھی وقت بے قابو ہو سکتے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کے لیے سفارتی کوششیں تیز۔ نائب وزیر اعظم کا مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان اور مصر کا صورتحال پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کا عزم دہرایا۔ ادھر مصر کے بھی دیگر ممالک سے رابطے۔ ڈاکٹر عبدالعاطی کا عراقی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزارت خارجہ کے مطابق امریکی صدر کی ایلچی اسٹیو وٹکوف کے ساتھ بھی بات چیت کی۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے نمائندہ برائے مشرق وسطیٰ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ جنگ بندی سے متعلق امور پر غور کیا گیا۔
जंगी मुस्लिमों का हर रोज तबाही का शोर बढ़ाना उसकी बुखलाहट है। ईरान की साबित कदमी और मुसल्लह अफवाज की जिदोजहद जारी रहेगी। अमरीका की ईरान को पत्थर के जमाने में भेजने की धमकी पर मुश्तबा खामनाई का जवाब। कहा, जंगी जराइम पर आलमी इदारों का खामोश रहना अफसोसनाक है। शायद बैन अल-अक़वामी इदारे अमरीकी और इसराइली जारहियत में शरीक हैं। अमरीकी धमकियां, शहरी ढांचे पर मुसलसल हमले, ईरानी पुलों, बिजली घरों और स्कूलों और अस्पतालों को तबाह करना इंसानियत के खिलाफ जुर्म की मिसालें हैं। अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयों में शहीद होने वालों को खिराज अक़ीदत भी। तेहरान ने अमरीका के साथ आरजी जंग बंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान अमरीका सदर के मुतालबात तस्लीम करने पर आमादा नहीं है। ईरान ने अपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल की वसूली का मुतालबा भी किया है। ईरान का कहना है कि आबना हुर्मुज़ की फीस का तयन जहाज़ और कार्गो के साइज़ के मुताबिक होगा। हमले फौरी रोके जाएं और दोबारा हमले न होने की जमानत भी दी जाए। ट्रंप की डेडलाइन भी मुस्तरद। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि जंग ऐसे अंदाज में ख़त्म की जाए कि दुश्मन दोबारा हमला न कर सके। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बुखारी ने अमरीकी फ़ौज के मिशन को ढोंग करार दे दिया। ईरानी फौजी क़यादत ने अमरीकी सदर की धमकियां वहम पर मबनी करार दे दी। खातिमुल अंबिया मरकजी हेड क्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि अमरीकी सदर ने जिस तरह जंग का आगाज का गलत अंदाज़ा लगाया, वो उसके फैलने का भी गलत अंदाज़ा लगा रहे हैं। ईरान हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार है। आबना हुर्मुज़ से अमरीका इसराइल को गुजरने नहीं दिया जाएगा। फौजी कमान ने बयान में कहा कि ट्रंप की धमकियां मशरिक़ वस्ता में अमरीका की जिल्लत और रुसवाई की तलाफी नहीं कर सकेंगी। अमरीका को मुसलसल नाकामी और सुबकी का सामना है। इस किस्म की सख्त ज़बान इन्हीं नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए है। ईरान के इसराइल और खलीजी ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। कुवैत में रात गए अली अल-साम अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हमले में 15 फौजी जख्मी। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अब तक 373 फौजी जख्मी हो चुके, 5 अब भी तशवीशनाक हालत में है। सऊदी अरब ने 7 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। मलबा तवानाई तनसीब पर गिरा। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक गिरने वाले मलबे से होने वाले तफसीली नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। सेहूनी रियासत पर भी मिसाइल हमले, तल अबीब, देमूना, बिरशीबा समेत मुख्तलिफ शहरों पर हमले, कई इमारतें तबाह, गाड़ियां जलकर खाकस्तर, मुतअद्दिद इसराइली जख्मी। मुआशी टीम की टैक्स तजावीज़ मुस्तरद। मिनी बजट भी नहीं आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए टैक्स न लगाने की हिदायत कर दी। कहा, फिलहाल कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। आवाम को रिलीफ देने के इक़दाम पर तवज्जो दी जाए। मई के आखिरी हफ्ते में बजट पेश करने की तजवीज़ मुस्तरद। वक्त से पहले बजट न लाने का कह दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी मंडी में तेल के नरखों से अवाम परेशान है। कशीदा सूरत हाल में IMF को रिलीफ के लिए मनाया जाए। आइंदा बजट में रिलीफ इक़दाम भी करें। बजट तरजीहात हालात के मुताबिक तब्दील किए जाने की तजावीज़। आइंदा बजट जून के पहले या दूसरे हफ्ते में पेश किया जा सकता है। हुकूमत की IMF को करप्शन के खात्मे की यकीन दहानी। चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के तरीक़ाकार पर नज़रसानी की जाएगी। सरकारी अफसरान के असासे भी पब्लिक करने का फैसला। नैब को मुकम्मल खुद मुख्तारी देने का हदफ। जनवरी 2027 तक इस्लाहात मुकम्मल की जाएंगी। चेयरमैन नैब की तकर्रुरी का तरीक़ाकार तब्दील, मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। नैब में आला ओहदों पर तकर्रुरी के लिए खुला और मुसाबकती निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। नैब के क़वाइद-ओ-ज़ाबित और कारकर्दगी का डेटा भी अवाम के लिए जारी किया जाएगा। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सख्त इक़दामात। बैंकों को असासों तक रसाई मिलेगी। स्टेट बैंक, FBR और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को भी मज़ीद इख्तियारात दिए जाएंगे। कसीर शोबाजाती कमीशन तश्कील दिया जाएगा। हुकूमत, अपोजिशन और अदलिया समेत मुख्तलिफ शोबों की नुमाइंदगी होगी। वज़ीर आज़म ने कोई नया जहाज़ नहीं लिया, पुराने जहाज़ को ही फर्निश किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वज़ीर आज़म के लिए तैयारा खरीदने की खबरों की तरदीद। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, दोनों तरफ जिम्मेदार लोग हैं, इस तरह की बातें जेब नहीं देती। जहाज़ चारों सूबों के वज़राए आला के पास हैं। वो रिक्शा जो बनी गाला से चलता था, क्या उसे भूल गए? वज़ीर आला पंजाब को टारगेट किया जा रहा है। रंगबाजी का सहारा न लें। शर्मिला फारूकी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बोली, रातों रात पेट्रोल 55 रुपये महंगा किया गया। क्या हुकूमत की कोई पॉलिसी है?
नवीद कमर ने नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली और सोलर पैनल्स पर टैक्स से मुताल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस दिया। ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि 35 साल पहले किए गए समझौतों के पाबंद हैं। हमारे हाथ पांव उन मुआहिदों की वजह से बंधे हैं। अपोजिशन बेंचों से हकीकत के खिलाफ बातें की गई। हुकूमत अब तक 129 अरब रुपए की सब्सिडी दे चुकी। PSDP में 100 अरब का कट लगाया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर किफ़ायत जारी पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा 14 मार्च से 4 अप्रैल तक कीमतें रोक कर सब्सिडी दी। वफाकी हुकूमत ने जो फंड्स देने थे सब काट लिए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर थर्ड पार्टी ऑडिट हो रहा है। पाकिस्तान तमाम बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त पूरी करेगा। UAE के कर्ज और यूरो बॉन्ड्स की वापसी के इंतजाम मुकम्मल हैं। वज़ीर ख़जाना ने पाना बॉन्ड्स के इजरा की भी खबर दी। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम मुल्क भर में फाल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में वक्फे से बारिश के बायस हर तरफ पानी पानी। सड़कें और गलियां डूब गई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कई इलाकों में बिजली सप्लाई मुअत्तल। मुख्तलिफ मकामात पर नकासी के काम का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला। दर्जा हरारत कम हो गया। कई मकामात पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। उधर DG खान और कोहे सलेमान के नदी नालों में तुग़यानी। मुतल्लिका इदारे अलर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। KP में बारिशों के बायस नुकसानात की रिपोर्ट जारी। PDMA के मुताबिक 4 दिन के दौरान छतें और दीवारें गिरने से 21 अमवात, 40 अफराद जख्मी हुए। 25 मार्च से अब तक 47 अफराद जामा और 117 अफराद जख्मी हो चुके। बलूचिस्तान में आसमानी बिजली गिरने से 3 कीमती जाने ज़ाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क आईनी अदालत के सदर कादर ओज़ियाकाया की मुलाकात। शानदार मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक तुर्क बिरादराना ताल्लुकात जामे शराकतदारी की जानिब गामज़न हैं। इंसाफ तक रसाई के लिए एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। मुफ़ाहमत याददाश्त उस मंजिल की तरफ पहला कदम है। चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की भी मुलाकात। मुख्तलिफ मनसूबों में पेशरफ्त से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का जारी मनसूबों की रफ्तार तेज करने का हुक्म। किफ़ायत जारी मुहिम के तहत हुकूमती इक़दाम जारी। पंजाब में भी मार्केटें और बाजार रात 8 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। बेकरियां, रेस्टोरेंट्स, तंदूर और खाने पीने की दीगर दुकानें रात 10 बजे बंद होंगी। शादी हॉल्स, मार्कीज और दीगर कमर्शियल जगहें रात 10 बजे तक ही खुलेंगी। निजी प्रॉपर्टीज और घरों में भी शादी ब्याह की तकरीबात 10 बजे के बाद मुनक्किद करने पर पाबंदी। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप, तंदूर, बेकरीज, मिल्क शॉप और फार्मेसी को इस्तिस्ना हासिल होगा। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क भर में 8 बजे तक कारोबार बंद करने का फैसला किया गया था। सिंध में औक़ात कार से मुताल्लिक़ मुशावरती अमल ताहाल जारी है। दुनिया में जंगी हालात के बावजूद पंजाब हुकूमत के रिलीफ इक़दाम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त, पेट्रोल पर सब्सिडी, अशाए खुरनोश भी तमाम सूबों से सस्ती। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। अफसर शाही के एहतसाब और अवामी रिलीफ के लिए नए अहकाम जारी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से महरूम 17 अजला में मुफ्त सफरी सहूलियात देने का फैसला। गुजरांवाला, मुल्तान और सियालकोट में पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी। अशाए खुरनोश का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत।